Namaste, everyone. This is Harsha Ramaiya, founder and director of Small Wonders Playhouse. And here today, I am to address to all the parents. Since the time the lockdown was announced and the schools were shut down, many parents had queries, confusion, stress, कि कब होगा, कैसे होगा. So then the first lockdown was supposed to get over. So parents were little relaxed. Then lockdown 2.0 started. So the parents, their patience level started shivering and the meltdown started happening and a lot of confusion started taking place. Then lockdown 3.0 was announced and parents were really now scared कि बच्चों का academics का क्या होगा, online studies का क्या होगा. My specific address today is to the preschoolers from Playhouse, and I will stretch it to standard 2, grade 2, because they also fall in this category. So regularly through WhatsApps, through Facebook Messenger, I have started receiving queries. I have started receiving messages wherein parents really are sharing their fear. पेरेंट्स जो हैं वो अपनी फियर बताते हैं क्या करना है आगे. दे आर वेरी clueless. And if I talk about schools, this was so sudden for all of us that we also had to figure it out, and it took little long for us to understand the situation, to understand that yes, how will we try to address the academics online, how will we try to reach out the children. So what I did is I decided कि जितने भी questions मेरे पास आए हैं उनको मैं frame कर लूं, and then I will try to address these questions as per my expertise. So the first question I received was, how to make the kids study, how to go ahead with academics. I think ये जो सवाल है ये सबके मन में है, स्पेसिफिकली जिनके बच्चे नर्सरी में एडमिशन लिए हैं, जूनियर केजी में हैं, सीनियर केजी में हैं. सो नर्सरी में सबसे बड़ी चैलेंज है कि बच्चों को राइटिंग कैसे करवाएं. ओरल वर्क तो ठीक है कि थ्रू यूट्यूब वीडियोस और द वीडियोस दैट आर सेंट बाय स्कूल इट कैन बी डन, बट जो राइटिंग वर्क है उसके लिए स्पेसिफिकली नर्सरी के पेरेंट्स बहुत 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 चिंता करते हैं और उनके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है, बिकॉज थ्रू वीडियोस और थ्रू एक्सप्लेनेशन राइटिंग कैन नॉट बी डन. तो इसके लिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि ट्राई टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द फाइन मोटर स्किल्स ऑफ द चाइल्ड. जैसे बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज दे जिनसे उनके फाइन मसल्स जो हैं वो डेवलप हों. घर में हमारे आसपास इतने रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, कि जिनसे हम इनकी फाइन मोटर्स को डेवलप कर सकते हैं. Children like to scribble a lot. So specifically जो बच्चे नर्सरी में हैं, I will request the parents कि उनको ample opportunities दे जिसमें वो drawing, अगर उनको जैसा भी drawing आता हो, जैसा भी scribbling आता हो, वो करें. Another important thing is कि सरफेस पे आप उनको राइटिंग करवाइए, जैसे आप स्टैंडिंग लाइन सरफेस पे करवाइए, बिकॉज इफ यू टेक द बुक एंड द पेंसिल, चिल्ड्रन विल नॉट want to sit and do that. That is the biggest challenge that the parents are facing, कि बच्चों को एक जगह पर बिठा के you are taking the book out and you are asking the child to write, वो हो नहीं पा रहा. बिकॉज चिल्ड्रन दे से कि मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, थोड़ी देर के बाद करूंगा, मैं ये टीवी देख लूं, मैं ये बात कर लूं, ये खेल लूं, एंड देन आई विल कम बैक, एंड द मदर इज ऑल डे रनिंग बिहाइंड द चाइल्ड. तो क्यों ना ऐसा करे कि स्टडीज को स्टडीज ना रखें व्हेन इट कम्स फॉर स्पेसिफिकली यंगर चिल्ड्रन. Let's try and add fun factor to it. So कोई भी surface हो, for example the center tipoy of the house or the floor या dining table हो, surface पे writing करवाइए. चलो, you also write, the mother also writes standing line, sleeping line, do a zigzag, so that these muscles are developed. एंड और वो सरफेस को आप चेंज भी कर सकते हो. ट्राई टू टेक रफ सर्फेसेस, ट्राई टू टेक स्मूथ सर्फेसेस, एंड एयर राइटिंग भी आप करा सकते हो. सो दैट कैन बी अ फन पार्ट एंड द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन दैट प्रोसेस. या book mein writing is totally a different thing, but when these skills are developed, it will help the child when the child goes to school. Because here when the parents are in a rush to force the child to read, to write, I think in a longer period the children will burn out on this. तो मैं parents से यही request करूंगी
कि थोड़ा तो पहले आप स्लो हो जाइए, बिकॉज द एंटायर एकेडमिक्स इज गोइंग टू बी डिलेड। पूरा एकेडमिक्स जो है, ऐसा नहीं होगा कि आपका बच्चा जब स्कूल जाएगा और ही विल बी लेफ्ट आउट। दैट इज व्हाट इज माय सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज वेरी कनेक्टिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कि जिसमें कहा जा रहा है कि माय चाइल्ड विल बी लेफ्ट बिहाइंड इफ आई डोंट फोर्स हिम टू रीड एंड राइट। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जब अगर सितंबर में या उससे बाद भी अगर स्कूल्स खुलेंगी तो इतना टाइम जो बच्चे ने अपना सिलेबस मिस किया है तो बच्चा ही विल बी फेल्ट लेफ्ट आउट, या तो स्कूल में से जो आ रहा है, जो भी वर्क आ रहा है, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू 100%, तो बच्चा मेरा पीछे न रह जाए। इस डर से पेरेंट्स बच्चों को बहुत फोर्स करने लगे हैं और बच्चों को पढ़ाई कराने लगे हैं। तो मैं पेरेंट्स से आई विल रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि प्लीज बी स्लो एट दिस टाइम। द स्कूल्स, जब भी स्कूल्स खुलेंगी तभी जो भी सिलेबस कराया है स्कूल्स ने वो सारा सिलेबस रिवाइज करेंगे। सो डू नॉट फोर्स, यंग चिल्ड्रन है उनको लिखने के लिए बहुत फोर्स ना करें, और लिखने के लिए ट्राई टू फाइंड आउट क्रिएटिव वेज। असाइनमेंट की वर्कशीट्स भी डाउनलोड हो सकती है, गूगल पे से स्कूल्स भी भेजने लगी है, आप वो भी कर सकते हो। आप अपने आप से बुक में असाइनमेंट की वर्कशीट बना भी सकते हो। यू कैन टेक आइडियाज। आई नो इट्स गोइंग टू ऐड टू द वर्क, बिकॉज आजकल मॉम्स भी हाउस वर्क में और उसमें फैमिलीज 24/7 घर पे रहते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो, बट समवन हैज टू टेक द पेन टू ब्रिज दिस गैप। तो आई थिंक कि अगर हर रोज नहीं तो एटलीस्ट वीकली ट्वाइस ऐसी वर्कशीट्स आप अपने हाथ से बना के बच्चों को दे सकते हैं, तो देन यू डोंट फील दैट द चाइल्ड इज लेफ्ट आउट। ओरल वर्क आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और ओरल वर्क में भी मैं स्पेसिफिकली पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि डू नॉट ट्रीट इट एज स्टडीज। उनको खेलते खेलते करवाइए। जैसे इफ यू आर डूइंग काउंटिंग, व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क इन द किचन, यू कैन एंगेज योर चाइल्ड देयर, एंड सपोजिंग द ग्लासेस आर देयर, तो यू कैन आस्क द चाइल्ड टू स्टैक देम वन अबव द अदर, एंड देन टेल द चाइल्ड वन टू काउंट करने को बोलिए, उसके साथ उसका स्पेलिंग्स का रिविजन करवाइए, टेबल्स का रिविजन भी वैसे हो सकता है। सो ट्राई ऑल्टरनेट वेज, don't focus only on the studies that are book oriented, that are book led, जो book में ही होती है वो studies नहीं होती है। So let's divert our focus from there, because this also is a learning and is a foundation, and it will help the child to have a concrete foundation। तो थोड़ी ऐसी चीजें हम लोग ढूंढें। रीडिंग के लिए मैं बहुत स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि रीडिंग के लिए बुक्स अगर घर पे हो आपके, वेरी नाइस, अगर नहीं हो तो किंडल से भी आप लोग, अमेजोन से भी डाउनलोड, अभी तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं कि जिन्होंने अपनी बुक्स को फ्री में डाउनलोड वर्जन में रख दिया है। तो लेट्स डाउनलोड द बुक्स एंड लेट्स मेक आवर चिल्ड्रन रीड अ लॉट, because this is the time that reading habit can be inculcated। तो लिखने पे इतना फोकस मत कीजिए। यहाँ पे मैं और एक चीज बोलना चाहूंगी कि चिल्ड्रन, not all children are same, everyone's learning style, everyone's style to adapt academics or understand academics is very different here. So if my neighbor's child is writing 5 pages does not mean that my child will also do the same. So we have to understand the pattern, what interests our child, हमारे बच्चे को किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। some children को बहुत एक्टिविटीज करना अच्छा लगता है कि मम्मी जब घर पे उनको कुछ भी काम देती है एंगेज करने के लिए, ओके नाउ शी इज इन द बालकनी ड्राइंग द क्लोथ्स, तो क्लिप्स है, जो क्लोथ क्लिप्स हैं उसका काम बच्चों को दे देगी कि यू कैन क्लिप द क्लोथ्स और यू कैन काउंट द क्लिप्स। ऐसा कुछ भी काम हो तो बच्चे उनको ज्यादा एंजॉय करते हैं रादर देन द वर्कशीट्स। तो मैं सच बोलूंगी कि लेट्स थिंक ऑन दोज ग्राउंड्स कि हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग में ज्यादा अपने आप को ढालें, अपने आप को बहलाएं कि ओके दिस इज ऑल्सो द लर्निंग दैट इज हैपनिंग, बिकॉज नाउ आवर होम, आवर किचन, आवर बालकनी, एवरीथिंग इज अ लर्निंग स्पेस। तो हर एक चीज में, तो अगर मैंने आज सपोज इफ आई एम ड्राइंग माई क्लोथ्स आउटसाइड एंड इफ माई डॉटर इज देयर विथ मी हेल्पिंग मी with just clipping the clothes or taking the clips off or just counting, I will think कि उसका maths हो गया है।
So now if I'm on the dining table and if I'm asking my child to set the dining table with me, she's setting the plate, the spoon, she's setting in order, तो I will think कि उसका order का काम हो गया है, the sequencing का काम हो गया है. So I think we have to divide our academics in this manner. We should not focus only on the books and the pages that the child writes. Here I would like to mention कि पूरे दिन में ऐसा कीजिए that decide one particular time, for example 11 a.m. in the morning or 5 p.m. in the evening, wherever you've decided कि आज पूरे दिन में इस टाइम पे हम वर्कशीट करेंगे या हम कुछ राइटिंग का काम करेंगे. So the child also understands कि okay, this time is allocated for this, दूसरा टाइम जो है वो मेरे पास फ्री है. So we have to make the children understand, because now is the role of the mother and the teacher together. So when these two roles combined with each other, there is a tendency that they blast. तो कभी कभी हो सकता है कि मदर जो है वो टीचर के रोल पे हावी हो जाए, टीचर जो है वो मदर के रोल पे हावी हो जाए, बिकॉज डर दोनों जगह है और हर एक को डर ये है कि मेरा बच्चा कहीं एकेडमिक्स में पीछे न रह जाए. स्टोरी टेलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो थोड़ा सा वो भी आप ट्राई कीजिए. और एकेडमिक्स का एक तो पहले दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि द अमाउंट ऑफ पेजेस दैट द चाइल्ड राइट्स is only the study that my child has done. So take into consideration each studying. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज सपोज आपने उसको बोला है कि 10 चीजें घर में ब्लू कलर की ढूंढ के लाइए आप, to keep the child engaged. I'm sure parents are doing these activities at home to keep the child engaged. That is also a part of learning. So let's count that कि अब आज बच्चे ने, let's add that in our timetable also कि आज बच्चे ने ये किया. For example, if the child has helped you to, put the vessels in place, or the child has helped you to fold clothes, that is also an activity. So उसको academics के नजरिए से देखें, then you will be relaxed, because moms, they are too much pressurized कि हाँ इतना स्कूल बंद रहेगा तो academics का क्या होगा. So let's shift our focus from pages to practical learning. And believe me, ये pages वाला learning तो अभी it has come in market, Otherwise, practical learning ही था. And I strongly, not because of COVID, but I strongly believe कि practical learning ही है जो बच्चों को lifelong learning lessons दे सकता है. Because if the child is bookish, and when the child has to face the ground reality, the child fails. So it's very important to give the child that environment. So that environment is possible today in our homes. So let's shift our focus from pages learning or pages writing to doing these kind of chores in the house. काफी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, तो थोड़ा उसको भी हम लोग दिखाएं. There was one very interesting question, how a mom and dad can justify the role of a teacher. Now the teacher in the school and the mom teacher or the dad teacher in the home are very two different characters. Because here जो ये mom teacher या dad teacher है is not trained to be a teacher. Is now by chance a teacher. So let's understand that we have to study the child. That is very, very important. We have to study the child. कि अगर मैं आज बच्चे को ये समझाने बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं इसको ये लिखा रही हूँ, तो how the child is taking that. If we feel that it is not interesting the child, we have to change our method. We don't have to shout at the child. We don't have to threaten the child, because many parents have started, taking these kind of steps wherein they are hitting their children, they are shouting, they are screaming, because many messages I'm reading and I'm receiving also, जिसमें parents मुझको बोलते हैं कि मैं थक गई हूँ, ये कुछ करता ही नहीं है, इसको बैठना ही नहीं है. But let me tell you, dear mom, dear dad, ये हर घर की कहानी है. अगर घर पे एजुकेशन हो सकता तो स्कूल्स की क्या जरूरत थी. So let's understand that. And for a child also, it is very important to understand this. Because हमको ये समझने की जरूरत है, because बच्चों के लिए भी ये ऑनलाइन लर्निंग ये सब बिल्कुल नया है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम समझे कि बच्चों पे इसका इमोशनल जो असर है वो किस हद तक है. बिकॉज बच्चा 24 घंटे घर के अंदर है, वो कहीं बाहर खेलने नहीं जा सकता,
कुछ वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो पूरा दिन वो एक जेल के अंदर बंद है. एंड नाउ वी आर हियर यू नो विथ द बुक्स एंड एवरीथिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड द इमोशनल factor of a child also. The child does not have any medium to release his frustration. और उस पे हम अगर बुक लेके बैठ जाएंगे तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क. एंड आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ माई हाउस ऑल्सो, दैट मेरे घर पे भी माई डॉटर इज इन grade 1. सो स्कूल्स में से लेसन्स आर कमिंग, बट इट इज नॉट दैट ईजी टू डू. आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्कूल्स, बट हियर it is very important that I understand how to give that to my child. Because अगर मैं इस दौड़ में if I try to take it as not as a marathon and I try to take it as a sprint race, I'm going to fail here. ये कोई 100 मीटर 200 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है. I have to be very slow, steady, firm and patient in this race. If I run to, you know, जो भी स्कूल से आया है, for example, 10 pages have come till date of maths, 10 pages have come of EVS, 10 pages of grammar, and if I am going to frustrate myself, कैसे होगा, तो ये होने ही नहीं वाला है. So let's be patient. Let's understand what the child tells us. जब वो पढ़ने बैठता है किस चीज में उसको इंटरेस्ट है. एंड इफ टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम, इफ वी आर गोइंग टू फीड द चाइल्ड इज गोइंग टू जस्ट वॉमिट इट आउट. द चाइल्ड इज गोइंग टू थ्रो इट आउट. वो नहीं लेगा. सो ये हर घर की कहानी है. सो और 6 months या 10 months का academic delay is not a disaster in a child's academic life. Let me tell you that. So parents, आप लोग ये जो थोड़ा सा डिले हो रहा है बच्चों को academics देने में या उसमें, तो उसको जीवन का अंत मत समझिए. Because when children will go back to school, धीरे धीरे everything will be lined up. और schools ने भी अपने हिसाब से ये पूरा सोच के रखा है कि जब बच्चे आएंगे तो कहाँ से शुरू करना है. Because वो भी जो गैप है उनको ब्रिज करना ही पड़ेगा. ये बिकॉज जो बच्चे हमने मार्च में छोड़े हैं और जो बच्चे हम सितंबर अक्टूबर या उसके बाद 6 महीने या 10 महीने के बाद हम जब बच्चों को मिलेंगे, ये बच्चे सेम नहीं होंगे. इन बच्चों को ऊपर इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल टर्बुलेंस, इमोशनल टर्मोइल बहुत कुछ हुआ होगा, क्योंकि अभी बच्चों का रूटीन भी बहुत डिस्टर्ब्ड है. सबसे पहले इस बात पर मैं रोशनी देना चाहूंगी कि रूटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी क्या हो रहा है, ज्यादातर बच्चे बहुत लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, तो देन उनका फोकस होना स्टडीज पे इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू हैपन. सो इफ वी वांट आवर चिल्ड्रन टू स्टडी, वी हैव टू फॉर्म अ रूटीन. एंड आफ्टर फॉर्मिंग अ रूटीन, मैं ये गारंटी नहीं करती कि बच्चे पढ़ने लगेंगे. आवर रोल टू बी पेशेंट विद देम, our role to understand their interest, and our role to give them little freedom has to be there if you are in a role of a mom teacher or a dad teacher. So it's very important that when you are taking a book and you're opening the book, your focus should not be कि आज मैंने बुक खोला है तो ये एक पेज आज मैं लिखवा कर ही रहूंगी, because that is not the victory. So try to understand, because ये रोल बहुत important है. नेक्स्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था. वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज एट होम लाइक लैपटॉप, फोन्स, प्रिंटर्स, गुड वाईफाई कनेक्शन एक्सेट्रा. तो स्कूल्स में से जो ये स्पेसिफिकली ऑनलाइन जिन्होंने शुरू किया है उसके संदर्भ में है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट सबके घर में 2-3 लैपटॉप्स नहीं होते, सबके घर में प्रिंटर्स भी नहीं होते. सो दीज आर चैलेंजेस. सो इसका रास्ता भी थोड़ा थोड़ा हमको ही ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग, सपोज एक लैपटॉप है घर के अंदर और 4 जन है उस लैपटॉप को यूज करने के लिए, मॉम भी है, डैड भी है, बच्चा भी है और दूसरा बच्चा भी है. सो रिकॉर्डेड सेशंस अगर आपको मिल सकते हैं बच्चों के लिए, तो ऐसे टाइम टेबल सेट कर दीजिए कि 11 बजे पापा काम करेंगे, 1 बजे मम्मी काम करेगी, 4 बजे बच्चा काम करेगा. सो यू नो यू हैव टू फिगर इट आउट, बिकॉज ये चैलेंज ज्यादातर घरों में है. और अगर वाईफाई कनेक्शन का भी प्रॉब्लम है और बच्चों की स्टडीज जो बड़े ग्रेड्स में हैं, जैसे 5th 6th में है, तो मैं कहूंगी कि स्कूल्स को भी आप रिक्वेस्ट कीजिए कि रिकॉर्डेड वर्जन्स भी दे, ताकि फ्यूचर में आपको काम आ सके बच्चों को पढ़ाने के लिए.
ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. वी आर नॉट इनफ एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड एंड मेक आवर चिल्ड्रन लर्न. सो यहाँ पर मैं पेरेंट्स को गुजारिश करने की जगह स्कूल्स को गुजारिश करूंगी कि जो भी लेसन प्लान्स आप बना रहे हो उसको बायलिंगुअल बनाइए, ताकि एक जो लोकल लैंग्वेज है उसका भी टच उसमें रहे, हिंदी रहे थोड़ा सा, तो पेरेंट्स समझ पाए क्या करवाना है. बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द पेरेंट्स हु हैव टू टेक इट फर्दर टू द चाइल्ड. सो फॉर अस आई बिलीव दैट मेरे लिए स्टूडेंट पेरेंट भी है और बच्चा भी है. सो आई हैव टू ट्रेन द पेरेंट एंड द पेरेंट विल ट्रेन द स्टूडेंट. सो मैं ऐसा मीडियम चूज करूं कि जिससे जो बात मैं कहना चाहती हूँ या जो समझाना चाहती हूँ वो पेरेंट समझे. सो हियर टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इंग्लिश, गुड इंग्लिश आई नो should not be there. Use bilingual things. If possible, try to use 3 languages. One Hindi, which is the national language. English थोड़ा आपको लेना ही पड़ेगा, and then the local language. So I think then you can reach out to the parents, and then parents can reach out to the चिल्ड्रन. यहाँ पर मैं स्कूल से ये भी गुजारिश करती हूँ कि जब भी आप कोई भी लेसन प्लान्स दें तो उसमें एक थोड़ा सा ओरिएंटेशन ऐड कीजिए कि पेरेंट्स कैसे इसको बच्चों को समझाए. यू आर डायरेक्टली नॉट एड्रेसिंग द चिल्ड्रन, the parents are in between. So try to draft a lesson plan. In each lesson plan, try to take out 2 to 3 minutes to address to the parents that this is the lesson plan. For example, an EVS lesson plan, my body parts. So give those 3 minutes to the parents to understand that how it has to be carried out at home. So I think that will help. This also is a very, very important question that is flashing on my screen. The school sessions are too long and the child cannot sit for long. Yes. So यहाँ पर भी मैं parents से request करूँगी कि schools are now very much open-minded. आप लोग schools को भी feedback दे सकते हो, because it is not possible for the child to sit for 40 long minutes. And I have heard that in many schools the sessions have started for 5 long hours. So the teacher keeps on changing. First it is the social studies period, and then it is the English period, and then it is the maths period, and the teacher keeps on changing on the screen, and the child remains to be there steady from 8 to 1. So I think it is a very, very tedious process. So let's understand this. As a school, I will request the school management to take this into consideration, that yes, एक तो एज बच्चों की आपको ध्यान में रखनी है कि किस एज को आप केटर कर रहे हो, एंड और दूसरा आप कितना बच्चों को एक्सपेक्ट कर रहे हो एक जगह पर बैठने के लिए. सो हियर आल्सो रिकॉर्डेड सेशंस विल हेल्प, बिकॉज नॉट ऑल चिल्ड्रन कैन सिट ऑन दिस काउच फॉर लॉन्ग. और स्कूल also I would like to address this thing very specifically, that when a child goes to school, for example, for 5 hours, वो पूरे 5 घंटे पढ़ता नहीं है. In those 5 hours, there is assembly, there is a free period, there is recess, the child goes in between to the toilets. So I think the schools must have figured out all these things. But if not, please give a feedback to the school that do not take so long sessions, because it is not practically possible for the child. Second, I would like to give a tip here कि अब अगर ऑनलाइन सेशंस शुरू हो गए हैं फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, बिकॉज छोटे बच्चों में तो क्या है, छोटा छोटा वीडियो आता है, बट बड़े बच्चों में, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स, तो आप अपने घर पे एक जगह ऐसी डिजाइन कीजिए विच इज द स्कूल फॉर द चाइल्ड. ठीक है, और जहां पे आप उसका लैपटॉप है या जो भी स्क्रीन आप यूज कर रहे हो, यू कैन फिट दैट स्क्रीन देयर, एंड दैट प्लेस इज मेंट फॉर स्टडीज. दैट इज अ लिटिल स्कूल, बिकॉज वो एटमॉस्फियर भी सेट करना बहुत जरूरी है. सो लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट दिस प्लेस इज माई स्कूल फॉर another 6 months, because now that is how we have to program our children. It cannot be that the laptop is on the table and the child is sleeping on the bed and looking at the teacher, and that cannot be possible. That should not be practiced if it is practiced. So assign a small place, a study table ho, स्टडी टेबल नहीं हो तो जहां पे वाईफाई का कनेक्शन, लाइट वगैरह ठीक आती हो, तो वो चीज को आप एक कॉर्नर बना दीजिए जो बच्चों की स्टडी प्लेस हो, एंड दे अंडरस्टैंड कि मैं वहां पर जाऊंगा और मेरा स्कूल शुरू होगा. सो दैट लिटिल प्लेस इज द स्कूल
for whatever time the lessons are being delivered. So that is very important. Second important thing is कि अभी मैं किसी के साथ वेबिनार कर रही थी, तभी आई थिंक डॉक्टर अंकिता वेरी राइटली मेंशन्ड आई ब्रेक. आइस ब्रेकर्स मैंने सुना था, मैंने बहुत तारीफ भी की इसकी, बिकॉज कंटिन्यूअसली लुकिंग एट द स्क्रीन विल डैमेज द आईज. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दैट ब्रेक. हर 30 मिनट्स पे द चाइल्ड हैज टू, 30 भी नहीं, मैं तो 20 ही बोलूंगी, एवरी 20 मिनट्स प्रैक्टिस कि बच्चा जो जगह पर बैठा है वहां से उठकर घर पे चक्कर लगाए या बालकनी में चक्कर लगाए एंड लुक्स एट सम अदर विजुअल्स विच आर नॉट स्क्रीन्स. That break will allow the eyes to cool down. So that is very important. Parents और schools को भी आप ये टिप दे सकते हो कि सेशन के बाद एक ट्रांजिशन टाइम रखे. जैसे बेल बजता है स्कूल में, एक टीचर जाती है, दूसरी टीचर आती है, तो उस दौरान बच्चे अपनी जगह से उठकर फ्रेंड्स के पास जाते हैं या पानी पी लेते हैं. सो दैट इज अ ब्रेक टाइम. सो हियर द ब्रेक कैन बी आई ब्रेक. तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आप बच्चों को हर 20 to 30 मिनट्स में आई ब्रेक दे, बिकॉज दिस ऑनलाइन लर्निंग इज गोइंग टू बी हियर विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो वो एक चीज. फिर से एक क्वेश्चन आया है, व्हाट अबाउट राइटिंग, चिल्ड्रन आर रनिंग अवे एंड डू नॉट वांट टू राइट. यस, यहाँ पर मैं पेरेंट्स से बहुत विनम्रता से ये गुजारिश करूंगी कि लिखना ही एकेडमिक्स नहीं है. So do not focus. If at all the child writes 1 year later, believe me, वो उतना जल्दी वो क्लास का सब्जेक्ट पकड़ लेगा. If the child is not, for example, your child is in nursery or your child is in junior KG and not writing, not willing to write, do not think कि आज नहीं लिखेगा तो स्कूल में जाके कैसे लिखेगा. If the child try, दो रोज प्रैक्टिस कीजिए कि आप उसको मोटिवेट करें लिखने के लिए. मोटिवेशन और फोर्स में बहुत अंतर है. ट्राई टू मोटिवेट. If the child is running away, do not force. And believe me, if you want to write these words, if you want to underline these words, you can underline. 1 year of delay in writing is not going to make any difference. बल्कि मैं ये कहूंगी कि इस डीले जो हो रहा है लिखने में बच्चों का, उसकी जगह पर आप उसकी इस जो फाइन मोटर स्किल्स है उसको डेवलप करने की इनफ अपॉर्चुनिटीज दें. तो थिंक इन अ डिफरेंट वे. नहीं लिखता है, ट्राई कीजिए. हर रोज उसको बोलिए कि टुडे एट 11 AM बेटा आपको एक पेज लिखना है मम्मा के साथ. ट्राई. Don't force, don't threaten, don't hit. Only try. If the child feels good, if he writes, give some appreciation, and then for day 2 you can be ready. But if the child does not write, this is not the end of the world. ये पूरे हिंदुस्तान के मदर्स की एक गलत फहमी है कि राइटिंग नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा. My daughter never wrote anything in class when she was in nursery. The teacher kept on telling me she's not writing, she's not writing. But when she came into junior KG, in 1 month she was able to write the whole ABCD and 2-letter words, because I thought I practiced to develop her fine motors. I gave her enough opportunities because she used to love drawing. So I gave her enough opportunities because in drawing also she used to draw all the curves, the shapes and everything. So automatically that was there. But अगर मेरा focus है कि कितना पेज लिखा, तो I'm not going to see those drawing pages जिसमें उसने उतने curves बनाए. So the shift of focus has to happen. Then there is, yes. What about the syllabus that is missed out? As I said earlier also, schools भी इस bridge को gap करने की, इस gap को bridge करने की पूरी कोशिश कर रही है. ऐसा नहीं होगा कि बच्चे जब schools में आए तो जो उन्होंने इस online पढ़ाया है उसका कुछ revision नहीं होगा. हर एक चीज का हर एक स्कूल में रिवीजन होगा और होगा ही. सो ये डर निकाल दीजिए. दिस इज द टाइम wherein schools are trying to keep the children engaged, ताकि ऐसा ना हो कि 6 महीने अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है तो फिर then बच्चा will be totally blank out. इसलिए थोड़ा डोज देना भी एजुकेशन का जरूरी है. So schools are trying to give that. Let's take it that way. Let's be patient and let's give a smaller dose to the children. Let's not, bounce on them कि स्कूल में से देखो आज 5 pages आ गए and you have not done anything.
please, because I've seen this frustration in the moms, specifically when they talk to me, ma'am देखो कितना सब कुछ आ गया है and this child is not doing anything, अब स्कूल शुरू होगा तो this kahani is of every mom, every dad, every house, every child, including Harsha. So let's not focus on that. Let's not understand कि लिखना पढ़ना उतना ही है जो एकेडमिक्स है, इसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें हम बच्चों को करा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड टू गिव आवर चिल्ड्रन practical learning. I will stress on this word, practical learning, because if the child is helping you just folding the clothes or just putting the vessels in its place is also a learning. If the child is helping you in cleaning the house, dusting and mopping, तो उसमें उसकी physical exercise हो रही है, उसका engagement हो रहा है. So let's focus on those things and let's blend the school learning and the practical learning. And when it comes to school learning, let's not take it on our heads and on our hearts and then on to the children. So let's be little patient, let's be little empathetic. ये भी time है जो गुजर जाएगा. So let's not howl on the children, let's not jump on our children, and let's not take academics too much on our heads. Let's be simple, let's be slow. I will say let's be slow is the correct word. Let's be slow, let's understand, and this time too shall pass. So this is from my side. इसके अलावा भी अगर कोई भी questions हैं आपके, definitely you can type in the comment section box. I will come back to you with those answers of those questions. But let's be slow. Let's not understand only reading and writing, specifically writing is academics. Let's understand the emotional factor of a child, which is very important. Let's pray that this time gets over very soon. So this is a bye from my side. Thank you so much, audience. Thank you so much.